اکنامک ابیوز یا اقتصادی تشدد سے مراد ہے کہ جب کوئی خامد اپنی بیوی کی اقتصادی وسائل کو حاصل کرنے کی جو ایبلٹی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی پیسے تک رسائی جو ہے اس کی وہ ممکن نہیں رہنے دیتا، جانتے بوجھتے ہوئے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بیوی فوڈ کے لیے، شیلٹر کے لیے، کپڑوں کے لیے یا پیسوں کے لیے اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے۔ کسی بھی ایبیوسیو ریلیشن شپ کے اندر آپ کو یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں کہ جسمانی تشدد کا بھی سامنا ہے، بہت سارے ایسے ایبیوسیو ریلیشن شپ ہے جہاں پہ لوگ ہاتھ تو نہیں اٹھاتے لیکن زبانی بات چیت سے کافی تکلیف پہنچاتے ہیں اور پیسے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بیوی پیسوں کے لیے ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے اور کسی نہ کسی طور یہ جو ایبیوسیو رشتہ ہے یہ چلتا رہے۔ اکنامک ایبیوز سے مراد ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو جاب کرنے سے منع کرتا ہے تاکہ وہ پیسے نہ کمائے اور انڈیپینڈنٹ نہ ہونے کی طرف جائے یا پھر مزید تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے، تو ایسی تمام صورتوں کو ہم جو اکنامک ایبیوز ہے اس کے اندر کنسیڈر کریں گے۔ ہسبینڈ شروع میں یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں ہی ہینڈل کروں گا، تمہیں جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم صرف گھر میں بیٹھو، گھر کو تم سیٹل کرو۔ سو بیوی کی محبت کے نام پہ یا ذمہ داری خود لینے کے نام پہ کسی بھی طور پہ جاب چھڑوانے کی پہلی کوشش کرنا۔ نمبر 2، اگر کوئی بیوی پروفیشنل ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی لائر ہے یا پھر انجینئر ہے تو اس کو مزید تعلیم حاصل کرنے سے بھی روکنا، یا ایون اگر بیوی جاب کرتی ہے اور وہ پروفیشنل جاب نہیں ہے اور وہ آگے ایجوکیشن لینا چاہتی ہے تاکہ زندگی میں تھوڑا آگے بڑھ کر مزید کمانے کا اسے موقع مل سکے تو مزید تعلیم حاصل کرنے سے بھی اس کو روکنا۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون یوز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، ٹیلی فون تک اس کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہ ہونے دینا کہ گھر میں اگر فون ہے تو پہلے دوسرے لوگ اٹینڈ کریں گے، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو تبھی جو ہے وہ وائف کو اجازت ملے گی فون اٹینڈ کرنے کی۔ اسی طرح سے جو زبانی بات چیت کی جیسے میں نے بات کی کہ جہاں پہ اکنامک ایبیوز ہوگا وہاں پہ جسمانی اور جو خاص طور پہ جو ایموشنل ایبیوز ہے وہ زیادہ تر ہوگا۔ فزیکل ایبیوز ضروری نہیں ہے کہ ضرور ہی ساتھ ہو، لیکن 98% کیسز کے اندر جو ہے جہاں پہ بھی کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہے وہاں پہ آپ کو اکنامک ایبیوز بھی ہوتا ہوا ضرور نظر آئے۔ اکنامک ایبیوز یا اقتصادی تشدد سے مراد ہے کہ جب کوئی خامد اپنی بیوی کی اقتصادی وسائل کو حاصل کرنے کی جو ایبلٹی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی پیسے تک رسائی جو ہے اس کی وہ ممکن نہیں رہنے دیتا، جانتے بوجھتے ہوئے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بیوی فوڈ کے لیے، شیلٹر کے لیے، کپڑوں کے لیے یا پیسوں کے لیے اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے۔ کسی بھی ایبیوسیو ریلیشن شپ کے اندر آپ کو یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں کہ جسمانی تشدد کا بھی سامنا ہے، بہت سارے ایسے ایبیوسیو ریلیشن شپ ہے جہاں پہ لوگ ہاتھ تو نہیں اٹھاتے لیکن زبانی بات چیت سے کافی تکلیف پہنچاتے ہیں اور پیسے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بیوی پیسوں کے لیے ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے اور کسی نہ کسی طور یہ جو ایبیوسیو رشتہ ہے یہ چلتا رہے۔ اکنامک ایبیوز سے مراد ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو جاب کرنے سے منع کرتا ہے تاکہ وہ پیسے نہ کمائے اور انڈیپینڈنٹ نہ ہونے کی طرف جائے یا پھر مزید تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے، تو ایسی تمام صورتوں کو ہم جو اکنامک ایبیوز ہے اس کے اندر کنسیڈر کریں گے۔ ہسبینڈ شروع میں یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں ہی ہینڈل کروں گا، تمہیں جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم صرف گھر میں بیٹھو، گھر کو تم سیٹل کرو۔ سو بیوی کی محبت کے نام پہ یا ذمہ داری خود لینے کے نام پہ کسی بھی طور پہ جاب چھڑوانے کی پہلی کوشش کرنا۔ نمبر 2، اگر کوئی بیوی پروفیشنل ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی لائر ہے یا پھر انجینئر ہے تو اس کو مزید تعلیم حاصل کرنے سے بھی روکنا، یا ایون اگر بیوی جاب کرتی ہے اور وہ پروفیشنل جاب نہیں ہے اور وہ آگے ایجوکیشن لینا چاہتی ہے تاکہ زندگی میں تھوڑا آگے بڑھ کر مزید کمانے کا اسے موقع مل سکے تو مزید تعلیم حاصل کرنے سے بھی اس کو روکنا۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون یوز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، ٹیلی فون تک اس کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہ ہونے دینا کہ گھر میں اگر فون ہے تو پہلے دوسرے لوگ اٹینڈ کریں گے، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو تبھی جو ہے وہ وائف کو اجازت ملے گی فون اٹینڈ کرنے کی۔ اسی طرح سے جو زبانی بات چیت کی جیسے میں نے بات کی کہ جہاں پہ اکنامک ایبیوز ہوگا وہاں پہ جسمانی اور جو خاص طور پہ جو ایموشنل ایبیوز ہے وہ زیادہ تر ہوگا۔ فزیکل ایبیوز ضروری نہیں ہے کہ ضرور ہی ساتھ ہو، لیکن 98% کیسز کے اندر جو ہے جہاں پہ بھی کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہے وہاں پہ آپ کو اکنامک ایبیوز بھی ہوتا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ سو تعلیم حاصل کرنے سے روکنا، فون تک رسائی اس کی نہ ہونے دینا، کولیگز جو پریویس ہیں ان کے ساتھ نہ ملنے دینا اور ایکیوز کرنا اگر کبھی ملے بھی۔
आइसोलेशन क्रिएट करने की कोशिश करना उस खातून के लिए जिसको वो जैसे फ्रेंड्स के साथ मिलने से मना करना कि क्या ज़रूरत है इतना मिलने की, क्या ज़रूरत है बाहर उनके साथ आउटिंग पे जाने की, क्या ज़रूरत है उन्हें घर पे बुलाने की, फिर अपने घर वालों से भी मेल मुलाकात पे कुछ ना कुछ पाबंदी लगाने की तरफ जाना, मनी मैटर्स के बारे में ये चाहना कि ये जाकर किसी से बातचीत ना करे, घर में खर्च जो है वो बड़ा नपा तुला देने की तरफ जाना, और जो भी नपा तुला खर्च देना ग्रोसरीज के लिए या जो मंथली बजटिंग है उसके लिए, फिर उसका एक एक बिल रिसीव करना कि तुमने ये पैसे कहाँ पे खर्च किए हैं। बाज़ एक्सट्रीम फॉर्म्स के अंदर ये भी होता है कि जो लोग खवातीन जो खुद से कोई ना कोई जॉब करती हैं या पैसे कमाती हैं, उन पे पाबंदी लगा देना कि तुम पैसे अपने खर्च नहीं करोगी, जो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ वही तुम खर्च करोगी। पॉकेट मनी के नाम के ऊपर पैसे ना देना, या अगर देना तो बहुत ही मामूली सी मिकदार के अंदर पैसे देना, और बाज़ वो भी 2-2 3-3 महीने ना देना और बाद में कहना कि मैं भूल गया था तुम्हें देना, अच्छा तुम ये इकट्ठे ही पैसे अब ले लो, और बहुत थोड़ी सी मिकदार के अंदर वो पैसे उसको देना जो कि उसकी अपनी चीज़ों को करने के लिए या पर्सनल जो बिलोंगिंग्स है उनको बाय करने के लिए या मेडिसिन के लिए वो पूरे नहीं होते। बाज़ वाइफ अगर काम करती है और वो भी अच्छी इनकम रेज करती है तो घर का खर्च देना बंद कर देना ताकि वो अपने पैसों से खर्च करे, या अगर वो घर का खर्च मंथली मांगती है तो कहना कि अच्छा मैं कुछ दिनों के बाद दे दूंगा, कुछ दिनों के बाद दे दूंगा, और इवेंचुअली चूंकि वाइफ के पास पैसे होते हैं तो वो खुद से अपने पैसे निकाल के उन्हें खर्च करती है। पैसों के लिए अपनी बीवी को मजबूर करना कि वो मांगे उससे तो तभी देना, जैसे मंथली बिल्स पे करने हैं, खर्च है, बजटिंग है, उसके लिए भी तब पैसे देना जब वाइफ मांगे, अगर वो नहीं मांगती तो फिर ना देना। और इवन अगर जो बजटिंग के अलावा जो पॉकेट मनी है अगर वो हस्बैंड नहीं अपनी वाइफ को दे रहा तो बाज़ औक़ात इस तरह मजबूर करना कि वो बेग करने लगे कि मुझे प्लीज पैसे दे दो, मुझे पैसे चाहिए, और जब वो बेगिंग तक पहुंचे तो तब उसको कुछ अमाउंट निकाल के दे देना और ये कहना कि मैं तुम पे बड़ा एहसान कर रहा हूं, वरना लोग तो ये कुछ नहीं करते। सो ये सारे जो रवैये आपको नजर आएंगे ये उन लोगों में नजर आएंगे जो कि बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं हर तरीके से, ताकि वाइफ जो है वो हर हर्ष के लिए उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करे। देखिए, तब्दीली का सफ़र आप जहाँ से भी शुरू करें उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तब्दीली के सफ़र से मुराद मेरी ये नहीं है कि आप इस रिश्ते में से निकल जाएं और अपनी ज़िंदगी को कोई बेहतर बनाने की एफ़र्ट करें। आपकी पहली एफ़र्ट इसी रिश्ते के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी संवारने की है। दूसरी एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि जिन बच्चियों की अभी शादियाँ नहीं हुई वो अपनी ज़िंदगी को शादी से पहले ही कुछ संवारने की जिद्दोजहद जो है वो कर सकती हैं, ताकि बाद में आने वाले हालात अगर उन्हें ऐसे फेस करना पड़ते हैं तो वो पहले से ही प्रिपेयर हों कि इस तरह के हालात का सामना कैसे करें और इस तरह के हालात में रहते हुए अपनी ज़िंदगी कैसे संवारें, और जो उनके इर्द गिर्द लोग बसते हैं उनकी ज़िंदगी वो कैसे संवार सकती हैं। सबसे पहली चीज़ खवातीन को ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि वो कोई बहुत ही नाजुक अंदाम चीज़ है। अक्सर खवातीन को मैंने देखा है कि वो छिपकली से डर लगता है, उनको कॉकरोच से डर लगता है, उनको घर से अकेले बाहर निकलने में घबराहट फील होती है। इसके अलावा अगर किसी फ्रेंड के पास जाना है तो कोई भाई साथ एस्कॉर्ट करता है और उसको फ्रेंड के घर तक लेकर जाता है और फिर वहां से वापस लेकर आता है। जॉब अगर उन्हें कहा जाए कि आप जॉब कोई करने की तरफ जाएं, अगर आप पढ़ लिख गए हैं तो वो कहेंगे कि जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल कॉलेजेस का जो दौर है वो ज़्यादा नावल पढ़ते हुए गुजरता है, वो कोई सीरियस स्टूडेंट की तरह वो कोई पढ़ाई की तरफ नहीं जाती। और ज़्यादातर लड़कियों के जहनों में अपने इर्द गिर्द के माहौल से सुनते हुए यही चीज़ होती है कि चूंकि मैं अगर ग्रेजुएशन कर लूँगी उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी तो फिर ज़िंदगी कोई बड़ी परियों की कहानियों जैसी गुजरेगी। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो अगर आप टीन एज के अंदर अगर हैं और आप अपने छोटे छोटे फियर्स को ओवरकम करना शुरू करें, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू करें। बाज़ औक़ात मैंने देखा है लड़कियों को कि उन्हें कुकिंग करना नहीं आती और वो इस चीज़ पे बड़ा प्राउड फील करती हैं कि मैं कुकिंग नहीं कर सकती, मुझे अच्छी नहीं लगती। उनका ख्याल होता है कि कुकिंग अगर सीखनी है तो इसका मतलब है कि कोई खाने ही बनाने हैं। सो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि लड़कियों को खाना बनाना भी आना चाहिए, इसी तरह लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। ये छोटी छोटी स्किल जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करती हैं और बहुत सारी चीज़ों पे आप डायरेक्टली काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे आप इनडायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर जो लड़कियां
साइकिल चलाना जानती हैं उनके अंदर आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा देखेंगे उन लड़कियों की निस्बत जिनको साइकिल चलाना नहीं आती। इसी तरह से जो लोग लड़कियां गाड़ी चलाना जानती हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको देखने में नज़र आता है, क्योंकि ये छोटे छोटे मसाइल हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में फिर सॉल्व कर रही होती हैं। में से निकल आना कि कोई आकर आपकी ज़िंदगी को संवारेगा। शादी से पहले ख़वातीन ज़्यादातर अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रही होती हैं और पेरेंट्स भी लाड उठा रहे होते हैं। शादी के बाद ख़वातीन को सिखाया जाता है कि वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करें और जैसा वो उनके साथ बर्ताव करते हैं, जैसा वो निभाह करते हैं, बस करती चली जाएं, जिसमें रखते हैं बस उसी में ही वो रहती चली जाएं। सबसे पहली जिम्मेदारी ख़वातीन को खुद उठाने की ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करना छोड़ दें शादी से पहले, नंबर 1। नंबर 2, शादी के बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंड मत करें, ख़ास तौर पर अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको सुधारने के लिए। शादी से पहले यूजुअली लड़कियां जो हैं वो चूँकि पेरेंट्स से सारा चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं, तालीम के ऊपर अखराजात जो हैं वो भी पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं। उसके बाद जो ख़वातीन जॉब भी करती हैं तो वो पेरेंट्स से भी पैसे ले रही होती हैं साथ में, क्योंकि उनके अखराजात जो कपड़ों के, जूतों के, नए बैग्स के, इस तरह की जो लग्जरीज हैं वो उनकी पूरी नहीं हो रही होती, तो वो अपने पैसे भी अपने ऊपर ही खर्च कर रही होती हैं, साथ में कोई ना कोई पेरेंट्स से भी वो पैसे ले रही होती हैं और उन्हें लगता है कि चूंकि पेरेंट्स हैं उनसे वो ले सकती हैं। अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स हैं, अच्छी बात है, वो आपको दे सकते हैं, लेकिन मैं इस फेवर में हूं कि जब भी आपकी उम्र 18 साल की हो जाती है, आप चाहे लड़की हैं या लड़का हैं, आपको कुछ ना कुछ अपना फाइनेंशियल सोर्स जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है। चाहे आप छोटे छोटे जॉब्स करके कुछ ना कुछ कमाने की तरफ जाएं, चाहे आप ट्यूशन घर के अंदर पढ़ाएं, चाहे आप घर से बाहर जाकर किसी को ट्यूशन दें, चाहे आप शाम को कोई पार्ट टाइम जॉब करें, लेकिन कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स अपना डेवलप कर लें। चाहे वो जितना छोटा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर 4,000 रुपये भी मंथली इनकम आपकी आती है तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको एक ऑनर फील होता है कि अच्छा आप कुछ पैसे कमाने के काबिल हैं और आप उन चीज़ों को फिर अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करें। सो कोई ना कोई अर्निंग सोर्स जो है वो होना चाहिए। मैं इस फेवर में हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद की जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो आपको अपने पैसों से ही करनी चाहिए। सो पहले आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप अपने लिए कोई इनकम रेज कर सकें, जिससे आप अपनी फर्दर स्टडीज़ जो हैं या हायर स्टडीज़ जो हैं वो अपने पैसों से करें, तो उसका मज़ा जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम भी आपकी बिल्ड होती है कि आप किसी काम के काबिल हैं, आप कुछ करने वाले हैं और आप ज़िंदगी में ना सिर्फ अपने लिए कुछ कर सकते हैं बल्कि आप ज़िंदगी में दूसरों के लिए भी कुछ ग्रेजुअली आगे चल के कर सकते हैं।